Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to talk about writing skill. Here we will discuss about methods and strategies of teaching writing skills. First of all, the meaning of writing skill. Writing is one of the skills developed in our students while teaching a language. It is through writing that a person is able to convey his thoughts and ideas to others who are not present there. Moreover, writing makes the record permanent. While writing a person has to very exact. Teaching how to write involves manual skill, the skill of controlling the small muscles of the fingers and the wrist, and securing coordination of the hand and the eye. There are two types of learners who can be taught writing of English language. The first category is of those who have not learned writing any language. The second category is of those who have already learned the writing of mother tongue. In the first case, the teacher has to explain to the learners how they have to sit, how to hold a notebook in the hand and how to hold a pen. After this, they are given preliminary of writing with a pen. Then they are given this type of practice with the help of chalk and small boards which are meant for the students. The students may given practice of drawing straight lines. Writing skills are an important part of communication. Good writing skills allow you to communicate your message with clarity and ease to a far larger audience than through face-to-face or telephone conversations. Teaching how to write involves manual skill, the skill of controlling the small muscles of the fingers and the wrist, and coordination of the hand and the eye. Consideration before teaching writing. Here we are going to discuss about considerations before teaching writing. First of all, choice of scripts. Before teaching writing, it is important to make choice of the script to be used. Script has the written symbols which are composed of strokes, circles, dots, etc. There are two types of scripts: print scripts, cursive scripts. Print scripts, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रिंटेड जो हम इलेक्ट्रॉनिक वे में जैसे कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग करते हैं, तो दैट टाइपिंग ऑफ फॉन्ट्स इज कॉल्ड प्रिंट स्क्रिप्ट. कर्सिव राइटिंग मीन्स राइटिंग थ्रू हैंड. Stages of teaching writing skill. Training to penmanship. As you all know that first of all, the first task of teacher is to teach students how to hold a pen. Training in penmanship enables the learners in learning to write English letters and their combination. The learner's power of observation and concentration gets developed and increased during the period of training in penmanship. It develops the taste and interest of the learners in writing too. Regarding training in penmanship, F. G. French observes that training in penmanship should begin with training in muscular control through fairly large movements using fingers in tray of sand or chalk or brown paper. The movement should include drawing of lines of various lengths and directions, half circles, loop, etc. As you can see in this picture.
तो पेनमैनशिप में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने बच्चे को सिर्फ पेन होल्ड करना सिखाना है और किस तरह से उस पेन को बच्चा यूज़ कर सकता है, किस तरह से लाइंस वो ड्रॉ कर सकता है, सर्कल्स बना सकता है। तो ये जो ट्रेनिंग है सबसे पहले हमें बच्चे को राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए देनी होती है। देन नेक्स्ट, लेटर राइटिंग। इन दिस लेटर राइटिंग इज टॉट। यहाँ पर हम बच्चे को लेटर लिखना सिखाते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं वो हम बच्चे को टीच करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं। फर्स्ट, कैपिटल लेटर्स आर टॉट एज दे आर ईजी टू राइट। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर जो होते हैं उनको लिखना बच्चे को सिखाएंगे। आफ्टर दैट टीचर शुड टीच द कैपिटल लेटर्स कैटेगरी वाइज। तो कैपिटल लेटर जो है वो अलग अलग तरीके से कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो बच्चे को बताया जाता है। फर्स्टली दोज लेटर्स आर टॉट विद 1 और 2 स्ट्रोक्स। तो पहले हम स्ट्रोक्स के माध्यम से बच्चे को लेटर्स को लिखना सिखाते हैं। लेटर ऑन वर्ड्स विद 3 स्ट्रोक्स देन 4 स्ट्रोक्स। तो ये आगे हम देखेंगे कि 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक से हम किस तरह से बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। आफ्टर दिस स्मॉल लेटर्स आर टॉट विच इज़ आल्सो ग्रुप्ड लाइक I, W, U। तो इस तरह से जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको हम टीच करते हैं दैट हाउ टू राइट स्मॉल लेटर्स। मैच्योर स्टाइल ऑफ राइटिंग। At last, students are moved towards mature style of writing. In this, cursive writing is introduced. तो जब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स को लिखने का तरीका बच्चे को आ जाता है, वो उसमें ट्रेंड हो जाता है। आफ्टर दैट वी यूज टू टीच mature style of writing, where we always try to teach cursive writing, and we introduce how to write in cursive way. Now next, methods of teaching writing. There are some methods of teaching writing skill. First one is kindergarten method. In this method, a kindergarten box is used for writing. There are pieces of wood and plastic of different shapes in this box. The letters of English alphabets can be formed by joining these pieces. तो कुछ प्लास्टिक के पीसीज होते हैं बॉक्स, कुछ वुडन बॉक्स होते हैं, तो उनको आपस में उनके जो टुकड़े होते हैं वो किसी अल्फ़ाबेट, जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट ए है, ए के रिगार्डिंग कुछ वुड पीसीज होंगे, तो उनको जब ज्वाइन करेंगे तो वो ए बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ पीसीज होते हैं, जैसे प्लास्टिक के हो गए चाहे लकड़ी के हो गए, कई तरह के पीसीज होते हैं, उनको जब कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो एक लेटर बनता है। तो किंडरगार्टन मेथड छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वो उनको ज्वाइन करके, इंटरेस्ट के साथ ज्वाइन करके किसी लेटर को फ्रेम करते हैं, अल्फ़ाबेट को फ्रेम करते हैं। देन ट्रेसिंग मेथड। This method requires the learners to make movements over the printed or written letters with a pen or pencil held in his hand. तो ट्रेसिंग मेथड में हम सभी जानते हैं कि इसमें द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर आइदर रिटन इन डॉट्स, लाइन्स और इन ए फ्रेम लाइक ABCD। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को हम डॉट्स में, जैसे अल्फ़ाबेट्स A है, अल्फ़ाबेट B है, वो हम डॉट में डॉट से उनको बनाएंगे। जैसे A को डॉट से बनाएंगे तो बच्चे का काम होगा उन डॉट्स को आपस में जोड़ना, जिससे कि क्या बनेगा, लेटर ए बनेगा। तो डॉट के माध्यम से आप सभी देखिएगा छोटे बच्चों की जो वर्क बुक्स होती है इंग्लिश की, उसमें बच्चे को हम ट्रेसिंग मेथड से ज़्यादातर टीच करते हैं, जिसमें कि बच्चे को जैसे कोई भी लेटर है A से लेकर Z तक, वो डॉट्स में दिया गया होता है, बच्चे को वो डॉट्स जोड़ने होते हैं और एक लेटर फ्रेम हो जाता है। तो ये मेथड भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन फ्री इमिटेशन मेथड। In this method, the teacher writes the model letters on the blackboard. The pupil copy or imitate the model letters. तो टीचर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लेटर लिखेगा,
ABCD कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, तो बच्चा उसे इमिटेट करेगा, जैसा टीचर ने लिखा है वैसा ही वो बच्चा अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेगा। तो उससे भी हम राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं। देन FG फ्रेंच मेथड। French has suggested that beginners should not be taught writing letters straight. Instead, they should be first taught to do some hand movements either with fingers in a tray of sand or with chalk. After hand movements, pupils are taught to draw strokes, semicircles, circles and loops like this. तो सबसे पहले फ्रेंच मेथड में हम बच्चे को क्या करते हैं, ये जो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फ्री हैंड राइटिंग है। बच्चे को कुछ भी हम पहले ड्रॉ करने के लिए, जैसे सीधी लाइन है, सर्कल्स में लाइन है, तो ये ड्रॉ करना बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं। सर्कल्स है, इसमें हाफ सर्कल है, स्ट्रेट लाइंस है, उनको आपस में जॉइन करना, तो ये हम फॉर्मली सबसे पहले बच्चे को वी यूज़ टू टीच देम। आफ्टर हैंड मूवमेंट्स प्रैक्टिस द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड लाइक टीचिंग स्ट्रोक्स। तो अब क्या है टीचिंग स्ट्रोक्स, बच्चे को हमने स्ट्रोक्स सिखाना है। पीपल शुड बी आस्क्ड टू ड्रॉ दीज स्ट्रोक्स। तो अब आप इनको देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये स्ट्रोक्स जो है, ये लाइनें जो है बच्चे को लगानी सिखानी है कि किस तरह से ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रोक्स। आफ्टर दैट फ्रॉम दीज स्ट्रोक्स दे शुड बी लेड टू राइट दीज वर्ड्स। तो ये जो स्ट्रोक्स अभी हमने बच्चे को टीच किए, इसके माध्यम से ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये बच्चे लिख सकते हैं। टीचिंग सर्कल्स, पीपल शुड बी गिवन सम प्रैक्टिस इन ड्रॉ सर्कल्स। तो ये देखिए सेमी सर्कल्स है, हाफ सर्कल जिसको बोलते हैं, और पूरे सर्कल है। ये जब बच्चे को हम टीच करते हैं तो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो इनके सहायता से बच्चे लिख सकते हैं। दीज सर्कल्स लीड टू दीज लेटर्स ECOQG। तो ये सर्कल हम बच्चे को सिखाते हैं। आफ्टर दैट टीचिंग कंबाइनिंग स्ट्रोक्स एंड सर्कल्स। स्ट्रोक और सर्कल को हमने अब ज्वाइन करके बच्चे को ड्रॉ करना सिखाना है। नाउ स्ट्रोक्स एंड सर्कल्स शुड बी कंबाइंड, दीज लीड टू दीज लेटर्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन स्ट्रोक और सर्कल को इकट्ठा करके जब बच्चा लिखना शुरू करता है, ड्रॉ करता है, तो वो फिर इन अल्फ़ाबेट्स को लिख सकता है, जैसे स्मॉल b, d, p, q, d, b। टीचिंग कर्व्स, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू मेक कर्व्स लाइक दिस। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के कर्व्स बच्चे को हमने टीच करने हैं, जिससे कि बच्चे को S, J, G, J, कैपिटल एंड स्मॉल j, इनको लिखने में हेल्प मिलती है। टीचिंग कंबाइनिंग स्ट्रोक्स एंड कर्व्स, द स्ट्रोक्स एंड कर्व्स शुड बी कंबाइंड लाइक दिस। तो इनको जोड़ के आप देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल लेटर्स है इनको हम लिख सकते हैं। So after methods, now it is important to know about characteristics of good handwriting. First, distinctiveness. तो जो हैंडराइटिंग है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले डिस्टिंक्टिवनेस, जिसे हम विशिष्टता कहते हैं। इट मीन्स दैट ईच लेटर शुड बी completely distinct so as to avoid the possibility of its being mistakes for another. It is legible. तो जो हम फॉन्ट्स लिखेंगे, अल्फ़ाबेट लिखेंगे, वो हमारा विशिष्ट होता है, वो दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे ABC लिख रहे हैं तो तीनों अपने आप में डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो हम जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं वो ऐसे टीच करना है, ऐसे सिखाना है बच्चे को लिखना कि वो हर फॉन्ट को क्लियरली लिखे ताकि उसकी पहचान बनी रह सके, वो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए रीडर को। आफ्टर दैट प्रॉपर स्पेसिंग, द डिफरेंट वर्ड्स शुड बी नीटली स्पेस्ड, नो वर्ड बीइंग कनेक्टेड बाय अ स्ट्रोक विद द फॉलोइंग वर्ड और सेपरेटेड बाय 2 वाइड इंटरवल।
तो इसमें क्या है कि प्रॉपर स्पेसिंग वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि वर्ड टू वर्ड हमारी स्पेसिंग होती है। जैसे यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं इनमें भी ये प्रॉपर स्पेसिंग है, ये हमने बच्चे को टीच करना है। और जो वर्ड के अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं उसके बीच में भी कुछ दूरी होती है, तो उसका भी हमने ध्यान रखना है, वो भी हमने बच्चे को टीच करनी है। लेटर्स टू मॉडरेट साइज, तो वो जो लेटर्स हम लिखते हैं वो एक मध्यम साइज़ के होने चाहिए। ईच लेटर शुड बी ऑफ मॉडरेट एंड इवन साइज। इट इज़ नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो लेटर्स हमारे ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए लिखने में और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए, एक मध्यम आकार के होने चाहिए जो विजिबल हो सके, जो रीडर है उसे पढ़ने में आसानी मिल सके। After that, writing in straight line. The writing should be in straight lines. The interval between lines should be even and sufficient to prevent intersection of loops and tails. तो ये आप सभी जानते हैं कि जैसे यहाँ लिखा गया है, हर लाइन से हमने क्या करना है, वो सीधी लिखनी है, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गोल मोल लाइनें लिख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लिख रहे हैं। तो जो एक सेंटेंस बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें हमने स्ट्रेट लाइन का ध्यान रखना है। सिंप्लिसिटी, हैंड राइटिंग शुड बी सिंपल। तो हैंड राइटिंग जो है वो सिंपल होनी चाहिए, जो कि रीडर को आसानी से समझ आ सके। स्पीड, राइटिंग शुड बी एट रीजनेबल स्पीड। तो जो स्पीड है वो आप सभी जानते हैं कि हमने बच्चे को जब राइटिंग सिखानी है, बच्चे की स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो ऐसा भी ना हो कि बहुत धीरे से लिख रहा हो, वो धीरे से लिखना सीखे, ये बहुत ही तेज़ी से लिखें। एक जो मीडियम स्पीड है वो लिखने की होनी चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से अपनी राइटिंग के थ्रू विचारों को प्रेजेंट कर सके। राइट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स एंड राइट यूज़ ऑफ प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन मार्क्स। तो जो राइट यूज़ है कैपिटल लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का सेंटेंसेस के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं, वो हमने बच्चे को टीच करना है। और किस तरह से हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं राइटिंग के दौरान, वो भी हमने बच्चे को टीच करना है। सजेशंस टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, करेक्ट हैबिट्स ऑफ राइटिंग शुड बी कल्टिवेटेड इन द स्टूडेंट्स एट द अर्ली स्टेज। तो करेक्ट हैबिट्स जो होती है राइटिंग की, वो हमने बच्चे के अंदर शुरू में ही डेवलप करनी है। स्टूडेंट शुड सिट इन द प्रॉपर पोस्चर वाइल राइटिंग। तो जब बच्चा लिख रहा है उसको हमने सिखाना है कि किस तरह से एक सही पोस्चर होता है बैठने का और लिखने का। द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू यूज़ कैलीग्राफी नोटबुक्स। दे कैन प्रैक्टिस इन राइटिंग बाय ट्रेसिंग। तो जो वर्कबुक्स होती है छोटे बच्चों की, तो वो भी हमने बच्चे को प्रोवाइड करनी है, ताकि वो लिखना उसमें सीख सके कि कैसे उसमें लिखा जाता है। स्टूडेंट्स शुड यूज़ 4-line एक्सरसाइज बुक्स फॉर डूइंग रिटन वर्क। तो इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं कि जो 4 लाइनों वाली किताब होती है, कॉपी होती है, एक्सरसाइज बुक होती है, वो हमने बच्चे को प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि वो लिखना सीख सके। द टीचर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन। एज यू ऑल नो दैट all students need individual attention, so as a teacher we should pay attention for every child. Specimens of good handwriting should be displayed in the class. तो हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो कोई विशेष हमारे पास अच्छे किसी ने हैंडराइटिंग लिखी है, किसी ने कोई भी पैराग्राफ अच्छा लिखा है, तो हम चार्ट्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू क्लासरूम में वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि बच्चे उनको देखकर अपनी राइटिंग को अच्छे से सुधार सकें। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।